Hello dear students, welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. This is Nandan Singh. Today we are going to understand the question answer section of Journey to the End of the Earth as you studied in the last lecture. You might have a complaint, sir, the questions are very limited. There are very few questions. But try to understand, my dear students, that only 3 short answer type questions will be asked you. 4 short type questions will be asked from Vista section. So, there is always a probability that there might be a question from any chapter. As far as Journey to the End of the Earth is concerned, each and every year a question is asked from this chapter, and that is also from the short answer type questions. So those questions which I have written today, those questions which I am going to make you understand are very, very important. Although you have studied the complete chapter and you would have a very good grasp on the complete chapter, these questions will help you to understand your chapter properly. Apart from that, as I always tell you, it is customary for me to tell you again and again that you have to make sure that your language should be original. You do not have to follow my language. You have to cultivate a capability to write the answers in your own way. You can follow my footprints, but you have to determine your destination. It is not necessary that whatever I teach you, you have to follow that. It is necessary that whatever I teach you, you have to upgrade them. You have to try to make it better and better. Sometimes it happens that my answers are a little bit complex, little bit difficult, and sometimes it may be possible that some answers are beyond your understanding. But when I translate those answers into Hindi, I am 100% sure that you understand all those question answers. The same thing will happen today. I am pretty sure that you will understand the answers properly. I have written 4 questions and their answers today. All the answers are very easy to understand. So let us start understanding those question answers. The first question is, what was the author's first reaction when she reached Antarctica? What was the author's first reaction when she reached Antarctica? लेखिका का यानी तिशानी दोषी की जो पहली प्रतिक्रिया थी जब वो कहाँ पहुंची, अंटार्कटिका, वो क्या थी? यानी जैसे ही उन्होंने अंटार्कटिका पर कदम रखा तो उनको कैसा लगा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किन शब्दों में लिखा है, तो देखते हैं क्या है. The author reached Antarctica continent after traveling over 100 hours. She traveled over 100 hours as you studied in the chapter. By car, by aeroplane and by ship. You might be remembering I told you in the last lecture that she says, I completed my journey by taking all geographical structures in my mind. I went from my house to the airport by car, from airport to Russia by aeroplane, and from Russia to Antarctica by ship. So it took her at least 100 hours. You can count it more than 4 days.
to reach Antarctica. You can imagine that how much tiresome this journey would have been for the author or for anybody. The journey which takes more than 4 days. आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस यात्रा में 4 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग जाए, वो यात्रा कितना थकाऊ होगा, कितना उबाऊ होगी। लेकिन इतनी यात्रा करने के बावजूद जब वो अंटार्कटिका पहुंची थी तो उनका अलग सा एक्सपीरियंस था। वो कहती हैं कि मैंने अपनी थकावट भुला दी, एक अजीब सा राहत हो रहा महसूस कर रही थी मैं। द ऑथर रीच्ड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आफ्टर ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स बाय कार, एरोप्लेन एंड शिप। कार से, एरोप्लेन से और शिप से वो अंटार्कटिका पहुंची और लगभग इनको 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। When she saw Antarctica, जब उन्होंने अंटार्कटिका को देखा, the first time, जब उन्होंने पहली बार अंटार्कटिका को देखा, she was taken aback. Taken aback मतलब होता है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। She was taken aback to see its immensity. Immensity मतलब विशालता। लेखिका लिखती है कि जैसे ही मैंने अंटार्कटिका को देखा, इसकी विशालता को देख करके मैं अचंभित थी। इतना ही नहीं, व्हाइट लैंडस्केप, दूर दूर तक, आपको भी पता है कि केवल बर्फ ही बर्फ है वहां, तो दूर दूर तक केवल बर्फ को देखना, विशालता को देखना, और क्या, एंड ब्लू होराइजन, और जो क्षितिज थी, क्षितिज आप समझते हो, होराइजन मतलब क्षितिज होता है, क्षितिज शब्द बना है क्षितिज और जा, यानी आकाश और जमीन, जहां पर ऐसा लगे कि वो दोनों मिले हुए हैं। आप ऐसे भी खुले मैदान में देखोगे तो कुछ दूरी के बाद लगेगा जैसे आकाश मिल रहा हो, किससे, जमीन से। तो वो एरिया जहां आपको दृष्टि भ्रम हो कि वहां पर आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में होराइजन और हिंदी में क्षितिज कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वंस अगेन व्हेन शी सॉ अंटार्कटिका, जब उन्होंने अंटार्कटिका को देखा, कब, पहली बार, द फर्स्ट टाइम। She was taken aback, वह अचंभित थी, to see its immensity, white landscape and blue horizon, इसकी विशालता को, एकदम दुधिया उजले दृश्य को देख करके, लैंडस्केप मतलब भूभाग, एक दूर दूर तक का जो एरिया दृश्य में नजर आता है उसको लैंडस्केप कहते हैं, एंड ब्लू होराइजन, और नीले क्षितिज को देख करके वो बड़ी अचंभित थी। She was feeling relieved as well, उनको राहत, रिलीव मतलब क्या होता है, राहत महसूस होना। तो जो 100 घंटे की जर्नी थी, उस जर्नी को बिल्कुल उसकी थकावट को इस दृश्य ने मिटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गोंडवाना, व्हेन डिड इट एग्जिस्ट। गोंडवाना क्या है और ये कब था, कब मौजूद था इस दुनिया में। गोंडवाना वॉज अ जायंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडवाना एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था, महादेशों का भी महादेश था, साउथ की तरफ, जिसमें अपना देश भी शामिल था। इट एग्जिस्टेड फॉर 500 मिलियन ईयर्स। यह अभी से 150 मिलियन साल पहले है, यानी कि 650 मिलियन साल पहले आपको बताया गया था गोंडवाना की उत्पत्ति हुई थी, और लगभग वो 500 मिलियन साल तक ऐसे ही रहा जैसे था मूल रूप में। लेकिन 150 मिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम टुडे, आज से 150 मिलियन साल पहले, जो मैंने कैलकुलेशन में पिछले लेक्चर में बताया था, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, और 150 मिलियन इक्वल टू 1500 लाख, मीन्स 15 करोड़। आज से 15 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स वगैरह खत्म हो रहे थे, उस समय इट सेपरेटेड इनटू कंट्रीज, यह भी विभक्त हो गया, गोंडवाना भी टूट गया अलग अलग देशों में, जो रूप आप अभी दुनिया का देख पा रहे हो। इट शेप्ड द ग्लोब एज वी नो इट। इसने ग्लोब का निर्माण किया, जिस ग्लोब को, यानी कि पृथ्वी का निर्माण किया, भूभाग का निर्माण किया, जिसको आज हम लोग देख पा रहे हैं। अगला है, हाउ इज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, विश्व भर का जो तापक्रम है वो कैसे बढ़ता चला जा रहा है। एक, व्हाट आर इट्स इमीडिएट इफेक्ट्स, इसके जो तात्कालिक प्रभाव हैं वो क्या है।
दो क्वेश्चन हैं इसमें। एक तो पूछा गया कि जो विश्व का तापक्रम है वो तेजी से कैसे बढ़ते जा रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है हम पर। देखते हैं क्या है। द ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द रैपिड यूज एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। रैपिड मतलब होता है तीव्र मतलब काफी तेजी से जो उपयोग और क्या हो रहा है, जलावन हो रहा है, यानी इसको जलाया जा रहा है। किसको जलाया जा रहा है? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म होता है। मैं आपको इसकी हिंदी करके समझा दूं। जीवाश्म का जो निर्माण हुआ इस शब्द का दो अलग अलग शब्दों से हुआ है, और अगर आप उसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? जीव जोड़ अश्म। जीव मतलब तो जीव जंतु होते हैं, अश्म मतलब अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष। तो जितने पेट्रोलियम वगैरह है ये सब जो आप सबको पता है, साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप सारे लोगों को ये पता है कि लाखों करोड़ों साल पहले बहुत सारे जंगल, बहुत सारे जीव जंतु किन्हीं कारणवश, यानी कि कई किसी नेचुरल डिजास्टर्स जैसे होता है, क्लाइमेटिक जो होती है, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, इन सब की वजह से धरती के नीचे समाहित हो गए और लाखों करोड़ों साल बाद वो पेट्रोल के रूप में, कोयले के रूप में हमारे सामने हैं। और उनको जब जलाया जाता है तो परिणाम क्या होता है? देखिए क्या होता है। इट हैज क्रिएटेड द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। ब्लैंकेट मतलब होता है घेरा, ब्लैंकेट मतलब कंबल भी होता है, वो तो मालूम है। तो इसने क्या किया है, पूरे दुनिया के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एक घेरा बना दिया है। इट मे कॉज मेनी डेंजरस इफेक्ट्स। इसके कारण से कई खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? लाइक मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिका आइस शीट्स। अंटार्कटिका का जो आइस है वो मेल्ट करना शुरू कर देगा, पिघलने लगेगा। और आप सबको पता है स्टोरी के माध्यम से ही कि विश्व भर का 90% आइस अंटार्कटिका में है। अब कल्पना करो कि अगर वो पिघलने लगे तो पूरी दुनिया में जल प्रलय हो जाएगी, हम सारे लोग डूब जाएंगे, बहुत सारी सिटीज चली जाएगी, बहुत सारे देश, आइलैंड डूब जाएंगे। और क्या? डिस्ट्रप्शन ऑफ गल्फ स्ट्रीम करंट एक्सेट्रा। जो खाड़ी का जो करंट है वो भी ऊंचा हो सकता है, उसकी भी लहर ऊपर हो सकती है, जिसके चलते बहुत खतरनाक तबाही आ सकती है। ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से अन्य बीमारियां तो होती ही हैं, और साथ साथ ये सब जो भौगोलिक परिवर्तन होंगे वो तो अलग है। लास्ट है, who had started students on ice program, what was its purpose? किसने शुरू किया था स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम और इसका उद्देश्य क्या था? पर्पस मतलब उद्देश्य होता है, ये तो आपको पता है ही। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय अ कनाडियन जॉफ ग्रीन। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एक कनाडा के नागरिक जिनका नाम क्या था? जॉफ ग्रीन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इट्स अल्टीमेट पर्पस, इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था? was to take the students of high school around the world, दुनिया भर के अलग अलग हाई स्कूल के छात्रों को लेके जाना था। कहाँ लेके जाना था? टू अंटार्कटिका। कहाँ लेकर के जाना था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि दुनिया भर में, चाहे इंडिया हो, जापान हो, चाइना हो, चिली हो, घाना हो, कहीं का भी, वहां के हाई स्कूल के छात्रों को चुने उनको अंटार्कटिका ले जाना था, so that they could know about their earth properly। अंटार्कटिका में ही जाकर के वो अपने दुनिया के बारे में सही ढंग से, पृथ्वी के बारे में सही ढंग से जान सकते थे। क्योंकि आप सबने स्टोरी में पढ़ा है कि अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसा प्लेस है जो हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। इसलिए the best place in world is Antarctica, which can tell us exactly what is the nature of our world, what is the condition of our earth, and not only today's condition, it may tell us about our past, about our present, about our future, all things. I hope that you have understood all the question answers, and what you have to do, as I told you earlier, you have to write these answers in your own way as well. If you have understood, and if you could not, tell me through your comment, and subscribe my channel as soon as and as much as you can. Thank you all of you.